So, hello, good afternoon, first of all, and welcome to the part of climatology, where in the first lecture we have discussed what exactly geography stands for and what exactly climatology is. Once in that part we were done with climatology, we have discussed what are the elements of climatology, that is, weather and climate. So, when we have discussed about weather and climate, uh, the basic elements like what is the major difference between weather and what is the major difference between climate, we have discussed about the elements of weather and climate, right? So elements of weather and climate, and in those elements we have discussed around six basic elements of them. The first one is insolation. We will discuss it right now. The second part is atmospheric temperature. Once we are done with atmospheric temperature, we will just discuss atmospheric pressure. Once we are done with this atmospheric pressure, we will move towards atmospheric circulation, and after the circulation part we will move towards condensation and precipitation. Once we are done with condensation and precipitation, the last part we will discuss is atmospheric storms. That includes tornadoes, cyclones, thunderstorms, and etc and etc. After discussing these elements, we just move to the part what exactly atmosphere is. We have discussed that it is the a gaseous envelope which just surrounds the earth's surface, and it is bound due to the gravity. Now, when we have discussed what exactly atmosphere is, how it act like a shield, we had to discuss the composition of atmosphere. And when we were discussing about composition of atmosphere, there were three components. The gases part, we were done with it. The water vapor part, we were done with it. And the last part is particulates. So today we will just discuss this particulate part, and we will start with our new topic, that is insolation, the first element of weather and climate. When we were studying about water vapor, what are the various significances that we have discussed here? The first is the possibility of rainfall. Then we have discussed the moderation of climate, and the most important part where we have discussed the concept of latent heat and sensible heat, and that was there we have discussed the concept of latent heat and sensible heat. It was the concept of redistribution of heat. So these were the few significances of water and vapor, and these were the few significances of water vapor, and this was our last part that we have discussed that day. Now, today we will start with particulate matter. The particulate matter or dust particle, right? So what exactly it is? The simple thing is our atmosphere contains multiple types of particulate. Now, multiple type of particulates. Now, what exactly I mean by this term, multiple types of particulate, right? They could be dust, salt particle, और pollen grains, सल्फेट्स. तो ये बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, इंक्लूडिंग अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, एक्सेट्रा काफ़ी सारे हैं. और ये जितने भी पार्टिकुलेट्स मैटर हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये लोअर लेयर में प्रेजेंट है. अब जितनी भी लेयर्स होती हैं और हीट बजट है, ये सारी अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करेंगे कि ये कौन से क्या क्या पार्ट है. सबसे पहली जो चीज़ आती है, पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं वो हमें पता लग गया कहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि हमने बताया था कि जो जैसे गैसेस का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा लोअर लेयर में, ऐसे ही पार्टिकुलेट मैटर का सबसे ज़्यादा कंपोजिशन क्या पे है? लोअर लेयर में है. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो इसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे. सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जो जो ये पार्टिकुलेट मैटर हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं, राइट. अब ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह तो एक्ट करते हैं. ये न्यूक्लियाई है क्या?
मतलब क्या समझते हैं, ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं ये एक सेंटर की तरह, अच्छा इसका सिंपल सा मतलब दोनों चीज़ों से समझते हैं। ये जो वर्ड है हाइग्रोस्कोपिक, ये दो वर्ड से बन के मिला है, ठीक है। तो पहला वर्ड है इसमें हाइग्रो, पहला वर्ड है हाइग्रोस्कोपिक, दूसरा वर्ड है न्यूक्लिक, न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक से हम क्या समझते हैं, एक पर्टिकुलर मटेरियल जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मटेरियल विच एब्जॉर्ब वाटर। और न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई तो एक सेंटर होता है, राइट। मटेरियल विच एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूक्लियाई इज समथिंग जो कि एक सेंटर की तरह काम करता है। तो एक्स इन रियल एग्जैक्टली करता क्या है, ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहाँ पे कंडेंसेशन होता है वाटर का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। और ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एग्जैक्टली करता क्या है, ये वाटर वेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, वाटर वेपर को अट्रैक्ट करता है। तो जब ये अपने अपनी तरफ वाटर वेपर को अट्रैक्ट करता है तो ये एक सेंटर की तरह काम करने लगता है। अच्छा, हमने देखा है ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सबसे बड़ा जो यूज़ होता है वो इसी का ही होता है, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं जैसे AgI, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, कुछ आयोडाइड, ये कुछ स्ट्रॉन्ग हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं। सिल्वर आयोडाइड हो गया, हाँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये क्लाउड में इंजेक्ट किए जाते हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिल्वर आयोडाइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्लाउड में इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इंजेक्ट करने के बाद ये आर्टिफिशियल रेन करा देते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को जो है वो कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्यों, क्योंकि आप क्लाउड में सीड मतलब इनडायरेक्टली आप क्लाउड में कुछ सीड कर रहे हो, जैसे सिल्वर आयोडाइड हो गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मच क्लियर हो जाएगा। ये ये इसी के अराउंड होता है कि वाटर एक्यूमुलेट कर जाता है और इसीलिए ये वाटर ड्रॉप्स की फॉर्मेशन में मदद करता है या फिर क्लाउड्स की फॉर्मेशन में मदद करता है। और जो ये अलग अलग तरीके की कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन देखेंगे उसमें। अब काफ़ी बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो कंसंट्रेशन है डस्ट पार्टिकल्स का वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो हमें देखने को मिलेगा ये सब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन। अब क्या होते हैं ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स, ये भी आगे जब प्रेशर को पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को, तो वहाँ पे और अच्छे से इसको डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना बहुत है कि जो कंसंट्रेशन इन डस्ट पार्टिकल का वो हमें सब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्यों मिलता है, इट इज़ जस्ट ड्यू टू दी ड्राई विंड्स की वजह से, एज कंपेयर टू इक्वाटोरियल या फिर पोलर रीजन। इक्वाटोरियल और पोलर रीजन तो क्लैरिफाइड हो गई कि भाई एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। ये पोलर है, पोलर रीजन, ये इक्वेटर हो गया, है ना, ये सब ट्रॉपिकल और ये टेम्परेट रीजन। तो ये हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे इतने जितने यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्राई विंड्स, राइट। आई होप डस्ट पार्टिकल्स का या फिर डस्ट पार्टिकुलेट मैटर का सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वो क्लियर हो गया। अब दूसरा सिग्निफिकेंस इनका क्या है कि दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ हीट बजट। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि हेल्प्स इन दी रेगुलेशन ऑफ हीट बजट, दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ हीट बजट। तो कुछ पार्टिकुलेट्स मैटर हैं, कैसे हीट बजट को कैसे रेगुलेट करते हैं। कुछ पार्टिकुलेट्स मैटर हैं जैसे सल्फेट एरोसोल्स हैं, ये करते क्या हैं, ये जो इनकमिंग सनलाइट आ रही है, मान लो ये सनलाइट आ रही है, इसमें से कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ठीक है।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे एक तो कूलिंग इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, और हीट बजट रेगुलेट हो जाता है हमारा। अब ये हीट बजट क्या होता है, ये भी बस थोड़ी देर बाद हीट बजट को ही पढ़ेंगे इन डिटेल में। तो हीट बजट वहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना कि भाई पहला तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं ये, दूसरा हीट बजट के रेगुलेशन में काफ़ी मदद करते हैं ये लोग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे सल्फेट एरोसोल कूलिंग इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। कुछ एरोसोल्स ऐसे भी हैं जैसे कि हमारा हो गया कार्बन ब्लैक, ठीक है। ये एरोसोल्स क्या करते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग में जो कार्बन ब्लैक है, ये ग्लोबल वार्मिंग में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, ये तो सनलाइट को रिट्रेस बैक कर रहा है, सनलाइट को रिट्रेस कर रहा है। अब ये कार्बन ब्लैक क्या कर रहा है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ से अर्थ सनलाइट आई, यहाँ पे आई, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे। अब इसने क्या करा, जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो ये कार्बन ब्लैक क्या करेगा, इसको रेडिएट बैक कर देगा, राइट। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे काउंटर रेडिएट कर रहा है ना ये इसको, तो जो हीट यहाँ पे थी वो यहीं की यहीं पे रह गई। इन लास्ट हो क्या रहा है, वार्मिंग। तो इसीलिए जो कार्बन ब्लैक है वो ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छा है बुरा है, ये हमारे लिए बुरा भी है। लेकिन वहीं पे सल्फेट एरोसोल हमारे लिए अच्छा है क्योंकि कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, हीट बजट को रेगुलेट कर रहा है, जो सनलाइट आ रही जितनी, कुछ पोर्शन जो है, क्योंकि सारी तो हमें नहीं चाहिए, तो कुछ पोर्शन को रिट्रेस कर दे रहा है। तो कितनी अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी कि जब हम पर्टिकुलेट मैटर के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, स्काई ब्लू क्यों है। इट इज़ जस्ट ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू एंड वाइट वायलेट लाइट, ठीक है। अगर अगर ये पार्टिकुलेट्स मैटर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अगर ये पार्टिकुलेट्स नहीं होंगे, तो इन लास्ट होगा क्या कि जो स्काई है वो हमें ब्लैक नज़र आएगा, क्योंकि ब्लू और वायलेट लाइट की स्कैटरिंग कौन कर रहा है, कौन किसकी वजह से हो रही है, इनकी वजह से। जब कोई लाइट ही नहीं होगी स्कैटर करने को तो क्या होगा, तो पार्टिकुलेट्स जो हैं ये कलर्स प्रोड्यूस करते हैं स्काई में। पार्टिकुलेट प्रोड्यूसेस कलर्स इन द स्काई, राइट, बाय स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, बाय स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। तो ये क्लियर हो गया कि भाई स्काई का ब्लैक क्यों है, ब्लू क्यों है कलर। नाउ एक मैं यहाँ पे आगे एक टर्म आएगी कन्वेंशन करंट। तो मैं कन्वेंशन करंट को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। कन्वेंशन करंट कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा छोटा सा यूज़ बताऊँगा इसका, कि ये कन्वेंशन करंट कुछ नहीं करता, बस ये जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, इन डस्ट पार्टिकल को एक अच्छी खासी हाइट तक ट्रांसफ़र कर देता है। तो कन्वेंशन करंट हेल्प्स टू ट्रांसफ़र दीज डस्ट पार्टिकल्स अप टू अ ग्रेटर हाइट। अब ये क्यों बताया, ये भी आगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अभी जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे वहाँ पे कन्वेंशनल करंट का जिक्र होगा। तो ये तो हमने कॉम्पोजिशन पढ़ लिया। कॉम्पोजिशन में हमने कॉम्पोजिशन जब हमने पढ़ा तो कॉम्पोजिशन हमने गैसेस के सिग्निफिकेंसेस देख लिए, ठीक है। फिर हमने वाटर वेपर के सिग्निफिकेंसेस देख लिए, वाटर वेपर के सिग्निफिकेंसेस, वाटर वेपर है क्या, फिर हमने डस्ट पार्टिकल के सिग्निफिकेंसेस देख लिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक पार्ट चल रहा है अभी, अभी तो कुछ आया ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर की बात करेंगे। जो अब तक हम जो लोअर लेयर कह रहे थे, तो वो लोअर लेयर है कौन सी। जब हम बात कर रहे थे ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में 10 to 15 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करता है। तो वो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये क्या है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये पर्टिकुलर हमारा एटमॉस्फेयर है। अब इसमें ना अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के टाइप में ये हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं। तो सबसे पहले जैसी लेयर आ जाती है वो आ जाती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अब ये ट्रोपोस्फेयर क्या है, फिर हमारी आती है स्ट्रेटोस्फेयर, और इन दोनों के बीच में आ जाता है स्ट्रेटोपोज। फिर हमारा आता है मीजोस्फेयर, और फिर हमारा आ जाता है एक्सोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के अंदर के पार्ट्स हैं, ठीक है, थर्मोस्फेयर।
तो ये मोनोपोज हो गया, ये ट्रोपोपोज हो गया, राइट। क्लियर है। तो हमारी ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, और जहाँ पे ये ख़त्म होगी तो ये पॉइंट क्या होगा, स्ट्रेटोपोज, मीनोपोज, और ये हो गया थर्मोपोज। ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं एक सेकेंड, वो स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फियर से। ट्रोपोस्फियर, अब ये ट्रोपोस्फियर क्या है इससे हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, तो जब हम ट्रोपोस्फियर से स्टार्ट करते हैं, ट्रोपोस्फियर है क्या, सबसे पहली लेयर है। अब तक जो हम लोएस्ट लेयर की बात कर रहे थे, तो हमारी लोएस्ट लेयर कौन सी है, वो ट्रोपोस्फियर ही है। ठीक है। ये इसके एक्सटेंशंस पता होने चाहिए। अगर हम एक्सटेंशंस की बात करें तो इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर हाइट नियर इक्वेटर। इक्वेटर के पास ये अप टू 18 किलोमीटर तक है, और अगर हम पोल्स तक बात करें तो पोल की बात करें तो ये 8 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो रही है। ठीक है। तो ये लोएस्ट लेयर है, और अगर हम इसकी एक्सटेंशन की बात करें कि इक्वेटर पे ये कितनी हाइट तक है और पोल पे कितनी हाइट तक है, तो अप टू 18 किलोमीटर ऑन इक्वेटर, अराउंड इक्वेटर, एंड अप टू 8 किलोमीटर अराउंड पोल्स। ठीक है। और जो ये हाइट है ट्रोपोस्फेयर की, ये जो हाइट है इसकी, ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर के। अभी हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट, ये नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जब हम ये नॉर्मल लैप्स रेट यहाँ पे पढ़ेंगे, तो जब हम नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ेंगे, नॉर्मल लैप्स रेट तो सिंपल है कि भाई जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर जो है हमारा रिड्यूस होता रहेगा एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ये याद रखना। ठीक है। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, अब अच्छा इसका अपोजिट भी पढ़ेंगे अभी। तो अभी नॉर्मल लैप्स रेट को देखें कि भाई जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ दिस 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोमीटर। अच्छा, ये हमें तो पता है कि जो अपर मोस्ट लेयर है, ये जहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपोज कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया था। तो अभी तक हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर इज नथिंग बट इट इज़ द लोएस्ट लेयर। एक्सटेंशन की बात कर ली कि 18 किलोमीटर तो ये अराउंड इक्वेटर की तरफ है, और 8 किलोमीटर हाइट जो है इसकी वो नियर पोल की तरफ है। ठीक है। लोएस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। टेम्परेचर जो है यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट के साथ, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नॉर्मल लैप्स रेट हमें देखने को मिलता है, ये जो चीज़ हम बता रहे हैं नॉर्मल लैप्स रेट ही तो है। नॉर्मल लैप्स रेट कितना है, -6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। ये नॉर्मल लैप्स रेट है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर कम हो रहा है, किस रेट से कम हो रहा है वो ये रेट है। अब इतना हो गया। जो हमारी मतलब इस लेयर की अगर हम बात करें, डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है। अब वो हाईएस्ट क्यों है, एक चीज़ देखो। जब हमने इस सेशन को स्टार्ट किया था, जब हमने इस सेशन को स्टार्ट किया था, तो हमने बताया था कि मोस्टली सारी चीज़ें जब भी कोई बात कर रहे थे तो वो लोअर लेयर में एग्जिस्ट कर रही थी। अब जब कोई ना कोई हर चीज़ जब जो है वो लोअर लेयर में एग्जिस्ट करेगी तो क्या होगा, तो वहाँ की डेंसिटी तो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। तो अराउंड 99% ऑफ वाटर वेपर यहाँ पे है, हमें अराउंड 99% ऑफ वाटर वेपर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। इतना ही पार्टिकुलेट मैटर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पार्टिकुलेट मैटर का जो प्रेजेंस है वो कम होता चला जाएगा, और 75% से ज़्यादा गैसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो वो कहाँ पे हैं, ट्रोपोस्फेयर में। अब इतनी सारी चीज़ें तो डेंसिटी को तो हाई बना ही देंगे ना, तो यही चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। ये जो ट्रोपोपोज की हमने बात करी थी, ये वो पॉइंट है जहाँ पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाता है।
ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर, जब तक ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको कन्वेंशनल करंट्स बताया था, ये कन्वेंशनल करंट की बात करी थी कि भाई डस्ट पार्टिकल को एक अप टू सर्टेन हाइट तक ले जाता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, काफ़ी बार जो है आ जाती है, तो नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली होता क्या, कंडक्शन क्या होता है और कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स बीच बीच में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम कभी भी इनका जो रेफरेंस आएगा तो उस टाइम पे ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि एग्जैक्टली कन्वेक्शन हो रहा है तो कन्वेक्शन होता क्या है, तो ये चीज़ें पता होनी आपस अपने आप में बहुत ज़रूरी है। कंडक्शन का मतलब होता है जब हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, मतलब हीट ट्रांसफ़र जब होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से वजह से, मतलब हीट का ट्रांसफ़र होना दो ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई टेम्परेचर एरियाज से लो टेम्परेचर एरियाज की तरफ, ठीक है। कन्वेक्शन होता है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हाई टेम्परेचर एरियाज टू लो टेम्परेचर एरियाज, उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। कंडक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होना दो ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें आती हैं कि भाई अब कुछ कुछ सवाल ये आते हैं कि मतलब इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको उठा लेता हूँ कि जितने भी मटेरियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जितने भी मटेरियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही क्यों होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, रीज़न है क्यों, क्योंकि कन्वेक्शन और कंडक्शन प्रोसेस जो है वो इसी एरिया में, अब डेंसिटी हाई है, हर तरीके का मॉलिक्यूल है, तो कंडक्शन प्रोसेस तो हो गई, तो कहीं पे हीट ज़्यादा है कहीं पे हीट कम है तो कन्वेक्शन प्रोसेस भी होगा, ठीक है। और मोस्टली जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे, मोस्टली कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो सारे यहीं पे हैं, और हमें यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट भी देखने को मिलता है, लैप्स रेट कैसा है, यहाँ पे नॉर्मल है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से मेट्रोलॉजिकल प्रोसेसेस ज़्यादातर हमें यहीं पे देखने को मिलते हैं। अब ये हो गया, एक चीज़ ये वाली पॉइंट याद रखना हमेशा कि ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। तो अब बात करते हैं सेकंड लेयर की। फर्स्ट लेयर होगी ट्रोपोस्फेयर के बारे में जितना जानना था उतना जान लिया। ट्रोपोस्फेयर के बारे में हमने क्या क्या जाना वो दोबारा से देख लेते हैं कि भाई ट्रोपोस्फेयर जो है ये हमारी लोएस्ट लेयर है, 18 किलोमीटर इक्वेटर के अराउंड जो है हाइट, अप टू 18 किलोमीटर हाइट इक्वेटर के अराउंड ये एक्सटेंड करता है और 8 किलोमीटर नियर पोल्स एक्सटेंड करेगा। इन जो है टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल लैप्स रेट इसीलिए देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हमें इसी रीजन में देखने को मिलेंगे। डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है बहुत हाई मात्रा में हमें यहाँ को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मीटरोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं हमें यहीं पर देखने को मिलेंगे, राइट। अब बात करते हैं सेकंड लेयर जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर, ओजोन भी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर के बाद ये आफ्टर ट्रोपोस्फेयर ये अप टू 50 किलोमीटर एक्सटेंड करेगी। आफ्टर ट्रोपोस्फेयर इसका जो एक्सटेंशन होगा वो अप टू 50 किलोमीटर होगा, और जो नॉर्मल लैप्स रेट अभी तक हमने देखा, नॉर्मल लैप्स रेट जो अभी तक हमने देखा वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रोपोपॉज वो पॉइंट था जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, उस पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। और ओजोन देखने को हमें मिलेगी अप टू अराउंड 20 to 35 किलोमीटर, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, किसी में 10 to 15 किलोमीटर भी दिया हुआ हाइट में, तो अप टू हम अप्रोक्स ले लेते हैं 20 to 35 किलोमीटर तक हमें जो ये ओजोन है, ओजोन का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। और जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी कि ये वाला जो पॉइंट है, एक सेकेंड, ये वाला जो पॉइंट है वो ट्रोपोपॉज है। ऐसी सिमिलरली मीसोफेयर और जो अपर मोस्ट पॉइंट है स्ट्रेटोस्फेयर का वो क्या होगा,
वो है स्ट्रेटोपोज, ठीक है, वो है स्ट्रेटोपोज, राइट। तो स्ट्रेटोपोज क्या है, क्लियर हो गया। अब स्ट्रेटोपोज, अब एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे अब हम जो सबसे बड़े रीज़न की हम बात करते हैं कि नॉर्मल लैप्स रेट जो है यहाँ पे ख़त्म क्यों हो जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट यहाँ पे आके एंड क्यों हो जाता है, वो चीज़ डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं कि भाई नॉर्मल लैप्स रेट यहीं पे आके एंड क्यों हो गया, या फिर क्या बेसिक रीज़न रहा। तो हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये डायरेक्टली हीट हो जाता है, डायरेक्टली हीट होता है सोलर रेडिएशन से, ठीक है। डायरेक्टली हीट हो रहा है, जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएटेड वेव्स हैं या फिर यूवी रेस हैं, ठीक है, ये कैसी होती हैं, शॉर्ट, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपर वाली लेयर पे आएंगे, वहाँ पे यूवी रेस जो होंगी वो सबसे पहले बढ़ेंगी, तो वहाँ पे जो सबसे पहले गर्म होगा तो वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली जो है सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नीचे वाली रेखा, क्योंकि नीचे आने में टाइम लगेगा, राइट, यही तो है। तो अप टू ट्रोपोस्फेयर यही होता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट नहीं होता, यहाँ पे इसको कहते हैं नेगेटिव लैप्स रेट, और ये लेयर जो है वो स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। वर्टिकल करंट्स हमें यहाँ पे वर्टिकल करंट्स की बात करें, मतलब वर्टिकल फ्लो जो हम देखने की बात करेंगे वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली लेयर इसकी हॉट होती है, ये इसकी हॉट लेयर होती है, उसकी नीचे वाली लेयर की बात करें तो ये कोल्ड लेयर हो जाती है, और यही रीज़न है कि वर्टिकल करंट्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता और स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। और यही लेयर है जहाँ पे हमें जेट स्ट्रीम्स भी देखने को मिलती हैं। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम्स क्या हैं, विंड ब्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट, और ये बहुत ही हाई स्पीड विंड्स होती हैं जहाँ पे एविएशन, मतलब एविएटर्स या फिर हमारे जो प्लेन वगैरह हैं वो सब उड़ते हैं, और वो उड़ने के पीछे का रीज़न क्या है, वर्टिकल करंट एब्सेंट है, तो जो टर्बुलेंस होगा वो भी एब्सेंट होगा, टर्बुलेंस भी नहीं होगा, राइट। तो इतना, मतलब एज पर सिलेबस इतना काफ़ी है इसके बारे में, क्योंकि डेप्थ में इसको कितना भी पढ़ लो, राइट। तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमें देखने को मिला कि भाई ये 50 किलोमीटर अबव ट्रोपोस्फेयर तक एक्सटेंड करता है, यहाँ पे हमें नॉर्मल लैप्स रेट की जगह नेगेटिव लैप्स रेट देखने को मिला, और यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट ख़त्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पे, जो हाइट बढ़ने पे यहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। उसके पीछे का रीज़न हमने जाना, क्योंकि यहाँ पे जो यूवी रेस हैं या फिर सोलर रेडिएशंस जो हैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉल होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर की अगर जितनी हम सबसे ऊपर वाली लेयर पे होंगे उतना ज़्यादा वो हॉट होगा, जितनी स्ट्रेटोस्फेयर की नीचे वाली लेयर पे जाएंगे तो वो उतनी कंपैरेटिवली ठंडी होती चली जाएगी। और यही रीज़न है यहाँ पे वर्टिकल करंट्स हमें देखने को मिलते हैं वो एब्सेंट होते हैं। स्ट्रेटिफाइड लेयर है, ओजोन हमें देखने को मिलती है यहाँ पे अराउंड 20 to 35 किलोमीटर, एंड बिसाइड दिस जेट स्ट्रीम्स काफ़ी कॉमन है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स यहाँ पे फ्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, और ये एविएशन के लिए काफ़ी अच्छी लेयर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल करंट्स एब्सेंट होते हैं, स्ट्रेटिफाइड लेयर है, तो टर्बुलेंस का नामो निशान नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो बहुत कम होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीजोस्फीयर की, ठीक है, ये हमारी थर्ड लेयर आ गई। स्ट्रेटोपोज के बारे में बात हो गई, राइट। तो जैसे वो ट्रोपोस्फेयर से अप टू 50 किलोमीटर एक्सटेंड करती थी, तो ये मीजोस्फेयर अप टू स्ट्रेटोस्फेयर से अप टू 80 किलोमीटर एक्सटेंड करेगी। इसकी थिकनेस की अगर हम बात कर लें, इसकी अगर हम थिकनेस की बात कर लें तो ये 30 किलोमीटर। अच्छा, थिकनेस से एक चीज़ और याद आई, जब हम थिकनेस की बात करेंगे, जो ये ट्रोपोस्फेयर है, जो ये ट्रोपोस्फेयर है इसकी थिकनेस इक्वेटर पे ज़्यादा होगी, थिकनेस इक्वेटर पे ज़्यादा होगी। वो क्यों? वो क्यों? क्योंकि जो ये हीटेड एयर होती है,
जो गर्म हवाएं होती हैं ये अप टू ग्रेट हाइट चली जाती है ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट। और कन्वेक्शनल करंट के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, ये डस्ट पार्टिकल को एक ग्रेटर हाइट ले जाने में मदद करते हैं, राइट। तो इक्वेटर पे थिकनेस जो होगी ट्रोपोस्फेयर की वो बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज ये हीटेड एयर को एक अच्छी खासी हाइट तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी थिकनेस की बात कर ली हमने, यहाँ पे जो इसकी थिकनेस होगी वो बताया ऑलरेडी कि अराउंड 30 किलोमीटर होगी, ठीक है। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ने पे हाइट बढ़ रही थी, यहाँ पे हाइट जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी या फिर जैसे जैसे हाइट कम होगी टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा डिग्री, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर हाइट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जैसे हमारा ट्रोपोस्फियर में था, ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस रहता है माइनस में, ठीक है। और कन्वेक्शन काफ़ी कम हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भाई कुछ होता ही नहीं है ना। और यूवी रेस यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट कॉज कर नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम होता है या फिर होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल ही होता है बिल्कुल, ठीक है। इस लेयर में कुछ ऐसा है भी नहीं जो इसमें इतना एक्सप्लेन करके पढ़ा जाए। तो दिस इज समथिंग अबाउट मेसोस्फेयर। थिकनेस हमने थिकनेस पढ़ ली अप टू 30 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर से अप टू 80 किलोमीटर एक्सटेंड होता है। 100 डिग्री सेल्सियस माइनस में इसका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर हाइट के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीटिंग इफेक्ट यूवी रेज जो है यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट कॉज नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसके बाद अलग अलग बुक्स में ना जो ये जो स्ट्रक्चर है, जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ये अलग अलग दी हुई हैं। किसी में इसमें 2 को डिफाइन करके फिर उसमें आगे एक्सटेंड किया गया है, लेकिन नॉर्मली ऐसे हम इसको पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर अब जहाँ पे हमारा मेसोस्फेयर ख़त्म होगा उससे आगे ही तो थर्मोस्फेयर ख़त्म होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता है। नेगेटिव लैप्स रेट हमें फिर से देखने को, अच्छा कितना आसान हो गया पढ़ना अब। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट हमें देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे देखो हमें नॉर्मल लैप्स रेट देखने को मिला, यहाँ पे नेगेटिव, फिर नॉर्मल, फिर नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है हाइट के साथ बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हीटिंग हमें देखने को मिलती है। अब हीटिंग हमें यहाँ पे क्यों देखने को मिलती है, मीजोस्फेयर में तो हमें देखने को नहीं मिली हीटिंग, लेकिन यहाँ पे क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि जितने भी एक्स रेस आ गई, गामा रेस आ गई, कॉस्मिक रेस आ गई, ये सारी थर्मोस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है, और इसी वजह से हमें यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। और जो डेंसिटी है यहाँ पे गैसेस की, डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, थर्मोस्फेयर में। तो डेंसिटी ऑफ गैसेस बिल्कुल लो होती है। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो इट इज़ अराउंड 0.2%, राइट। पर मॉलिक्यूल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन याद रखना डेंसिटी गैसेस की ओवरऑल तो काफ़ी लो होती है, लेकिन पर मॉलिक्यूल की, जब हम पर मॉलिक्यूल की बात करें, पर मॉलिक्यूल एनर्जी की बात करें, तो वो काफ़ी हाई होती है यहाँ पे। जो इसका, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी रेस हैं, इतने सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे जो इसके इन थर्मोस्फेयर के अंदर एक स्फेयर हमने ऐसी क्लासिफाई कर दिया जिसको आयनोस्फेयर कह दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वाला एक्सोस्फेयर कह दिया। तो जो इसके इनर पार्ट है जहाँ पे आयनोस्फेयर है, वहाँ पे आयंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसमें फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलती हैं काफ़ी सारी, कि ये जो आयनोस्फेयर है ये एक्सपेंड हो जाता है डे टाइम में, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है या श्रिंक कर जाता है नाइट टाइम में, ये सब देखने को मिलता है। और ये जो आयनोस्फेयर है सिर्फ यही ये जो है हमारे रेडियो सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशंस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो जब मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा तो बहुत सारे सिग्नल्स को जो है रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ग्राउंड की तरफ, जिसकी वजह से इसको इस चीज़ में यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक और बहुत फेमस चीज़ आयनोस्फेयर की, हमें यहाँ पे ऑरोरास भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो मैजिक लाइट डांसिंग जिसे हम कहते हैं, और ये कहाँ पे विजिबल होता है, इट इज़ विजिबल नियर दी पोल्स के पास ये विजिबल होते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑरोरास भी देखने को मिलते हैं।
और जो ये थर्मोस्फेयर का एक इनर पार्ट तो आइनोस्फेयर हो गया, और जो इसका आउटर पार्ट होता है वो होता है एक्सोस्फेयर। यहाँ पे पर मॉलिक्यूल डेंसिटी तो हाई है, लेकिन डेंसिटी यहाँ पे काफ़ी लो है, यहाँ पे तो डेंसिटी इससे भी ज़्यादा लो है। ठीक है, तो ये हमारी 4 लेयर्स थी। जो हमारा एवोल्यूशन था, एवोल्यूशन की ये हमारी चार मतलब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर का जो कॉम्पोजिशन था, ये उसकी 4 लेयर्स थी। राइट, तो हमने 4 लेयर्स के बारे में देखा अभी तक कि भाई 4 लेयर्स कौन सी थी। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इंसुलेशन। इंसुलेशन में ही, इंसुलेशन को जब हम इंसुलेशन के सिग्निफिकेंस को देख लेंगे, जब हम उसमें डे टाइम का कंसेप्ट या फिर सन स्पॉट साइकिल वगैरह हम सारा देख लेंगे, और फिर जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे हीट बजट के बारे में। राइट, तब तक जो है इसको हम एंड करते हैं यहीं पे। हमने सारी लेयर्स के बारे में पढ़ा, पिछला क्या था वो सारा रिकैप हो गया है ना, और पार्टिकुलेट मैटर को डिटेल में पढ़ा। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये हमारा लेक्चर 2 था, इसके अंदर हमें पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना था। तो पार्टिकुलेट मैटर्स हमें देखने को मिले, जैसे कि सल्फाइड, सल्फेट, सॉल्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, अनबर्न कार्बन पार्टिकल। सिग्निफिकेंस में हमने देखा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई देखा। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या है? हाइग्रोस्कोपिक क्या है? जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूक्लिया एक सेंटर की तरह काम करता है, तो ये कंडेंसेशन कर देता है वाटर की। दूसरा जो है हमने हीट बजट का रेगुलेशन कैसे करता है वो देखा हमने। सल्फेट एरोसोल देखा पॉजिटिव, जो कि कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। कार्बन ब्लैक देखा हमने, जो कि नेगेटिव टर्म्स में हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर देता है। स्काई का कलर ब्लू क्यों है वो हमने यहाँ पे पढ़ा। कन्वेंशनल करंट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। उसमें ट्रोपोपोज में हमने देखा कि भाई ट्रोपोपोज में जो टेम्परेचर हो जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हमने नेगेटिव लैप्स रेट देखने को मिला, सॉरी यहाँ पे हमें नॉर्मल लैप्स रेट देखने को मिला। यहाँ नेगेटिव, यहाँ फिर नॉर्मल और यहाँ फिर नेगेटिव। थर्मोस्फेयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और इट इज़ इन आइनोस्फेयर जहाँ पे हमें ऑरोरास देखने को मिलते हैं। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के लिए काफ़ी यूज़ होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमने देखा जेट स्ट्रीम, जो कि जहाँ पे टर्बुलेंस बहुत कम होता है, टर्बुलेंस कम होता है क्योंकि ये लेयर बहुत स्ट्रेटिफाइड होती है। वर्टिकल करंट यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ये सब चीज़ें देखी। और ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी थिकनेस होती है वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होती है। और इक्वेटर पे होने का रीज़न जो है वो कन्वेंशनल करंट है, क्योंकि जो हीटेड एयर है उसको कन्वेंशनल करंट बहुत ऊपर तक, हाइट तक रेज आउट कर देते हैं। ये लोवेस्ट लेयर है, यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। 18 किलोमीटर एक्सटेंड करता है, अब 18 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है इक्वेटर। एंड पोल्स के अराउंड 8 किलोमीटर तक नॉर्मल लैप्स रेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। हमने देखा कंडक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, और कन्वेक्शन हमने कि भाई मॉलिक्यूल्स का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। मेट्रोलॉजिकल प्रोसेसेस यहीं पे क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और हमें नॉर्मल लैप्स रेट होता है यहाँ पे। सेकंड लेयर की जब हमने बात करी वो स्ट्रेटोस्फेयर थी, 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। और मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर से अप टू 80 किलोमीटर एक्सटेंड करती है। और फिर 80 किलोमीटर के बाद अप टू 600 किलोमीटर अनंत तक जो है वो थर्मोस्फेयर एग्जिस्ट करती है। नॉर्मल लैप्स रेट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ बढ़ता है। और यही रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि जो यूवी रेस हैं वो डायरेक्टली हीट करती हैं इसको। तो अपर लेयर सबसे ज़्यादा हीट होगी, लोअर लेयर उससे कम हीट होगी। तो अपर लेयर जो होगी हॉट हो जाएगी, नीचे वाली लेयर कोल्ड हो जाएगी थोड़ी सी कंपैरेटिवली। तो वर्टिकल करंट का जो होगा हमें एब्सेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो उसी के लिए जेट स्ट्रीम्स का यूज़ हो गया। फिर मेसोस्फेयर की बात करी, थिकनेस 30 किलोमीटर, टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल लैप्स रेट फिर से देखने को मिल जाता है यहाँ पे। हीटिंग यहाँ पे होती नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेजेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। थर्मोस्फेयर की बात करें तो इसमें 2 एक्सोस्फेयर और आइनोस्फेयर हमें देखने को मिलते हैं। आइनोस्फेयर में आयंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे हमें फिर से नेगेटिव लैप्स रेट देखने को मिलता है। डेंसिटी काफ़ी कम होती है लेकिन पर मॉलिक्यूल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और ये जो आइनोस्फेयर होता है ये एक्सपेंड करता है डे के टाइम, और नाइट के टाइम पे ये श्रिंक करता है। रेडियो ट्रांसमिशन सिग्नल और ऑरास हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। So this is how we are just done with the topic. Next time we will start with elements of weather and climate. Elements of weather and climate, and in that element the first element is insulation. So we will start with the insulation part. So see you.